Hey everybody, welcome to another Drip Golf video and we have a very special episode today. Yes. We're at Harmony Golf Camp here in Gurgaon. मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतने सारे एपिसोड्स हमने बना लिए हैं, लेकिन जो लोग बेसिकली गोल्फ से फेमिलियर नहीं है उनके लिए एक एपिसोड स्पेशली बनाया जाए ताकि दे आर able to relate to the stuff that we are talking about. Yeah. So basically you can relate to the stuff that we are talking about in our podcast also, as well as in our game video as well. Let's do it, right? Yeah. With the golf teacher, I will ask him questions what to explain. So he will explain the stuff in the easiest way possible, Yeah. जो layman समझ सके, जिसको Yeah. golf का पता ही नहीं. So पहला question, गोल्फ होता क्या है? आप उसका स्ट्रक्चर समझाओ. जैसे क्रिकेट में आप बेसिकली स्ट्रक्चर समझाते हो कि करना क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ. राइट? दो टीमें जो भिड़ रही हैं वो क्यों भिड़ रही हैं? हाँ. यहाँ पे टीम स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता, स्ट्रक्चर क्या होता है वो एक्सप्लेन करोगे. Okay, so golf in general is how, if I want to explain the structure, it is basically one man trying to hit a ball closest to the pin or inside the पेन pin. क्या होती है? During down the video, will show you. Yeah. Divided into 3 different types of holes. सबसे पहला होल जो है वो which is a par 3 and par 3 means कि आपको 3 शॉट में you have to finish the hole. Yeah. And so is par 4 and par 5. Yeah. So essentially finishing a hole within your given strokes is what golf is all about. Since we are already on that track, so I'll say कि जितनी बार आप एक शॉट ओवर मारते हो एक होल पे, that's called a bogey. Yeah. And double bogey and triple bogey and so forth. अगर ऊपर मार रहे हो तो जिससे अगर आपने पार 3 पे 4 बारी में खत्म किया तो it's a बेसिकली bogey. इट्स अ बोगी फॉर यू Yeah. बिकॉज़ यू हैव टेकन वन एक्स्ट्रा शॉट. Yeah, part 2 पांच में मारा है तो डबल बोगी एंड सो ऑन, so on and so forth, triple bogey, quadruple, etc. अगर आपने 3 में ही मारा है, पार 3 को आपने 3 शॉट में खत्म किया तो इट्स So that's a par. इट्स अ पार. Yeah. दो में किया तो दो में किया तो that's called a birdie. बर्डी. ओके. एक में किया है तो पार्ट 3 पे उसको एल्बाट्रॉस बोलते हैं, बट अगर पार्ट 4 पे करोगे तो इट्स ईगल. होल इन वन बोलते हैं. हाँ, उसको होल इन वन. एंड बट इफ इट्स अ पार 4, अगर आपने वो 2 में खत्म किया तो दैट्स एन ईगल. ईगल. और पार 5 को अगर आपने 2 में खत्म किया विच इज एन एल्बाट्रॉस. Like ideal number of shots, -1 is birdie. Yeah. Ideal number of shots, -2 is an eagle. Yeah. And -3 is an albatross. So Yeah. so on. Then you can apply it to any of the holes की par 5 पे अगर आपने 2 में खत्म किया तो albatross होगा, 3 में खत्म किया तो eagle Correct. होगा, 4 में किया तो birdie होगा, 5 पे किया तो par होगा. Yeah. तो आप एक टी बॉक्स से स्टार्ट करते हो. नाउ टी बॉक्स जहाँ हम खड़े हैं, सपोज अगर यहाँ से होल स्टार्ट हो रहा है एंड इट गोज टुवर्ड्स अ सर्टेन पर्टिकुलर होल. So that place where you start from, there are going to be 2 major indicators. So अगर मैं ये 2 बॉल्स को रखता हूँ नीचे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. So ideally हर टी बॉक्स पे 2 ऐसे इंडिकेटर्स होंगे, मार्कर्स होंगे, ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड, वाइट. These are basically called tees. So example के लिए ये 2 मार्कर्स हैं, तो आप दोनों के बीच में खेलते हो and you cannot put your tee in front of the markers. So every time you play, you have to be behind the marker line. और and the maximum that you can go is like 1 full club length. Yeah. एक जो आपका बैग में सबसे बड़ा क्लब है, आप उसकी लेंथ लेकर उसके पीछे से उतना खेल सकते हो, लेफ्ट राइट पीछे, बट एवरीथिंग हैज टू बी बिहाइंड द टी बॉक्स. So that basically is a tee box. This is very important. Having a cloth at the course is very important. Since we are on the topic of tees, I have 3 different tees. The one that I use, this one, the first one, I use it for my driver. The other one I use it for my woods, and the third one I use it for my irons. So depending on what type of start that you want from your tee box, you can have different type of tees, different sizes, and so on and so forth. That is all about the structure. Hazards क्या क्या होते हैं? Basically तो टी बॉक्स आप स्टार्ट करते हो तो बीच में क्या क्या चीज़ें आपके hazards आ सकते हैं? Yeah. पहले उसके बारे में बताओ. So पहला hazard तो is right in front of you, all around you. That's trees. The second hazard is water, and water is artificially created ponds around the course जहाँ पे आप थोड़ा सा पानी डालते हो खौफ डालने के लिए. खौफ डालने के लिए. Bunker is basically एक ऐसा sand pit सी बना रखी है. It's a place where there's a lot of sand. Yeah. And every course has different types of sand. कोई ग्रेनी होती है, कहीं कभी हार्ड होती है, कभी बहुत सॉफ्ट होती है. हमने अभी टी बॉक्सेस की बात करी और गोल्फ कोर्स कैसे डिज़ाइन होता है, हज़ार्ड्स क्या होते हैं. एंड टू रीच दोज ग्रीन्स जो हम बात कर रहे थे, you need irons, which we'll again get into after this, but first we wanted to show you what greens are all about. Yeah. So essentially this is your aim when in golf, that's your aim to get the ball inside that hole. Yeah, so there are multiple flags you can see, but because this is a practice green, Yeah. otherwise एक ही flag होता है. Correct. Every green एक has ही one hole flag. होगा which you are trying to reach. Yeah. और आप देख सकते हो texture wise ये सबसे Fine grass. फाइन ग्रास होगी. यस.
मतलब मेरे को लगता है फाइन कट सबसे ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस भी इसी की होती है, बिकॉज इवेंचुअली इस पे आपको रोल करना होता है. यू आर नॉट लाइक बाकी शॉट्स में आपको हिट करना है ओवर इन दी एयर, यहाँ पे हिट नहीं करना है. इट्स बेसिकली और जैसे आप अगर इसको रोल करते हो तो आप बेसिकली आप इसको रोल करके आपको फाइनल शॉट या जितने भी शॉट्स आप लोगे इस ग्रीन पे होल में डालने के लिए, सो इट्स काइंड ऑफ योर फाइनल, दैट्स योर फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, दैट इज टू गेट द बॉल इनसाइड द होल and finish the hole. That's what you do for 18 holes actually. Yeah. अब यहाँ तक आने के लिए क्या क्या यूज होता है इक्विपमेंट? Now we go to that. Maximum equipment आप अपने उसमें रख सकते हो 14 is 14. Anyway, so this is the driver. As you can see, हमने डिस्कस भी किया था. इसका शाफ्ट अगर आप देखोगे तो it's the longest probably of all the, हम बाकी इक्विपमेंट भी दिखाएंगे तो you'll realize कि सबसे लॉन्गेस्ट शाफ्ट है, is because it's the equipment जिससे आप सबसे दूर मार सकते हो potentially. So basically ये क्लब हेड होता है और इससे कनेक्टेड जो ये शाफ्ट होती है अलग अलग साइज में आती है, अलग अलग वेट में आती है और अलग अलग फ्लेक्स में आती है. फ्लेक्स बेसिकली क्या है कि जब आप पीछे ले जाते हो उसको और नीचे लेकर आते हो तो ये शाफ्ट है ना मुड़ती है. कितना बेंड होगा तो कितना बेंड होता है, उसका किक पॉइंट कहाँ पर है. किक पॉइंट बेसिकली होता है कि कभी कभी यहाँ से फ्लेक्सिबल होती है, नीचे से होती है या ऊपर से होती है. सो डिपेंडिंग ऑन द किक पॉइंट, जैसे ये मेरे वाली का यहाँ किक पॉइंट है. सो दैट इज आवर ड्राइवर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the woods. We'll go down to the woods. So we'll take out two different woods. So this is a 3 wood and this is basically a 5 wood. तो 3 wood में थोड़ा सा ये पतला है बट ये लंबा जाता है. 5 wood का थोड़ा डिस्टेंस कम होता है बट मेरे हिसाब से 5 wood is a little more consistent. So 3 wood का जो लॉफ्ट होगा वो 5 wood से कम होएगा. 5 wood का थोड़ा ज़्यादा होगा और 5 wood इसीलिए लॉन्च हाई होता है बट इसकी डिस्टेंस थोड़ी उसकी वजह से कट जाती है. एंड देन ये बेसिकली आपको क्लोजर टू ड्राइवर वाली फील ही देगा अगर आप देखोगे कि शाफ्ट वाइज या करेक्ट फेस हेड वाइज अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा ड्राइवर से रिलेटेबल फील देगा. तो ये मेरे बैग में एक वन ऑफ माई मोस्ट ट्रस्टी क्लब्स that I have in my bag is my rescue. ये जैसे this is like a 220 club, 220 yards का क्लब है मेरा. I can use this from anywhere. क्लब की फील देता है, एक आयंस की फील देता है ये. उसकी वजह से मैं इसको लिटरली कहीं से भी मार सकता हूँ, चाहे मैं इसको ग्राउंड से मारूँ, चाहे मैं इसको टी बॉक्स से मारूँ. तो इसको होल्ड करके रखता हूँ मैं यहीं पे जस्ट सो दैट जब आयन आप एक्सप्लेन करोगे तो आप बता पाओगे कि why is it similar. This is the longest iron in my bag. Why we call this irons is basically steel shaft, steel head, rubber grip, and this is what you use off the fairway or off a tee box depending on which club you're using. ये है आपकी गेम का 30-40%. By the way 4 है, number 4 under your club. Why I use this rather than this is because the 4 iron is a little inconsistent for me, but this sort of gives me 20 yards less but has much more कंट्रोल ओवर द कोर्स. बेसिकली डिपेंडिंग हर बंदे का अपना पर्सनल करेक्ट मैं वही स्विंग के हिसाब से होगा. कौन से टाइप के आयरन्स होते हैं? 2, 3, 4 से लेकर आप आ जाओ अराउंड 9 तक. सो अगर आप इसको देखोगे तो ये बिल्कुल फ्लैट है, इसको देखोगे तो ये लॉफ्ट है, इसमें ये थोड़ा सा कर्व करता है. और ऐसे ही दोनों क्लब्स देखोगे तो आप सेम है. इनका बस दोनों का क्या है कि वो थोड़ा कम है, शाफ्ट साइज कम होता है. एंड 9 का जैसे क्या है वो थोड़ा लॉफ्ट बढ़ जाता है. बस ऐसे ही है 4 से 9 तक जितने क्लब्स आप सिलेक्ट करोगे उनका बस लॉफ्ट कम होते जाता है और कुछ नहीं है, और कुछ चेंजेस नहीं है. नाउ लेट्स गेट इनटू द वेजेस एंड आई वांट टू ब्रिंग आउट ऑल माय वेजेस बिकॉज आई वांट टू शो एवरीबॉडी व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद वेजेस. बट जैसे जैसे आप गेम में एडवांस करते जाते हो, आप नई चीज़ें सीखते जाते हो, वैसे वैसे आप अपने आप को you get used to new clubs. And that's why I have so many wedges because there is so much variety in wedges that everybody when they start playing they'll realize कि अच्छा मुझे ना de-lofted club चाहिए जिससे मैं बम्प एंड रन कराऊंगा. बम्प एंड रन क्या होता है कि आपने बॉल रखी, नीचे मारा, वो फ्लाइट भी नहीं लेगी, बस नीचे रोल होते हुए पिन तक चली जाती है. उसके लिए आप यू कैन यूज़ अ पिचिंग आयरन. ये है पिचिंग वेज. तो पिचिंग वेज का क्या है, आप देखोगे लॉफ्ट कितनी है इसके आप देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ शेप हो रहा है. ये हो गया आपका पिचिंग वेज विच इज़ बेसिकली यू कैन यूज़ इट अप अंटिल 130-140 yards डिपेंडिंग ऑन हाउ फार यू हिट योर हैंड्स. आफ्टर योर पिचिंग वेज you start with 50 degrees. Now this is a 50 degree club.
Now 50 degrees what it means is अगर आप नीचे इसको रखोगे, इसका बेस प्रॉपर पूरा ग्राउंड से कनेक्टेड रखोगे तो ये 50 डिग्री के एंगल पे रहेगा. तो बेसिकली अलग अलग डिग्रीज हैं. करेक्ट. लॉफ्ट की डिग्रीज होती हैं अलग अलग वेजेस की. सो आप देखोगे 46 है, 50 है, 54 है, 56 है, 60 है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना हाई मार के कितना उसी ऑन द पॉइंट रोकना है. जैसे 60 डिग्री मारोगे तो बिल्कुल हवा में, जो सबसे ज़्यादा हवा में जाएगी वो बॉल जहाँ रुकेगी वहीं लाइक लिटरली 1 यार्ड विद इन द 1 यार्ड और मे बी उसी टाइम यू नो इट विल जस्ट डेड स्टॉप होगा. करेक्ट. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना सॉफ्ट लैंडिंग चाहिए, कितना आपको डिस्टेंस कवर करना है, सो यू कैन सेलेक्ट, मिक्स एंड मैच कर सकते हो. Correct. अब ये बंकर में भी यूज होगा आपका जो सैंड पिट इसने डिस्कस किया था. यूजुअली चिपिंग में भी विद इन 100 यार्ड्स के जो डिस्टेंसेस हैं वो सारे इधर से ही कंट्रोल होता है. Yes, the club loft is very important, but the other very important thing are the grooves. जब आप देखोगे कैडी होगा आपका कोर्स पे, वो हमेशा अपने साथ एक ऐसे ना कपड़ा बांध के ले चलेगा और वो क्या करेगा, वो इसको है ना जैसे आप शॉट मारोगे उसके बाद ना इंस्टेंटली इसको क्लीन करेगा. एंड वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज द मोर द ग्रूव्स आर क्लीन, the better contact that you, when you get a good contact on your ball, it will give you spin. रेगुलर सेट में इनमें से क्या क्या आता है अगर मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू सेट खरीदूं किसी भी उसका? सो ब्रांड न्यू सेट में आता है 5 iron, 6, 7, 8, 9, then pitching and sand and then a putter. ये जो वेजेस हैं ये 99.9% ऑफ द गोल्फ सेट जो पैकेज गोल्फ सेट्स होते हैं उनमें नहीं होता, बिकॉज दीज आर स्पेशली मिल्ड अकॉर्डिंग टू यू. इसमें ग्राइंड्स भी अलग अलग आते हैं, सो उनके बारे में भी आगे वी विल टॉक अबाउट इट ऑन पॉडकास्ट. और उसमें ड्राइवर और वुड होता है. ड्राइवर होता है एक, वुड होएगा आई गेस, बिकॉज वो आइडियली 5 देते हैं या 3 देते हैं, डिपेंड करता है. वाटर भी दिखाई दो अब तुम. Also all the 3 putters that I have, Oh boy. so that So you you've gotten the different grip also. yes, I have different grips because I wanted to show everybody that you know how much difference a good grip makes. So this is your sweeper. छोटे छोटे घूंघट हटा देता हूँ. और ये काफ़ी है ना. So I'll start with this because I think all of us started with something like this. ये एक ब्लेड पटर बोलते हैं इसको. ब्लेड पटर इज़ स्मॉल, इट इज़ प्रिसाइज, बट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर पटिंग टू एक्चुअली मेक इट वर्क. तो इसको आप ग्रीन पे यूज करते हो? इसको ग्रीन पे जो अभी हमने पट दिखाया था जतिन को. हाँ. Nice. Putting is basically when you get to the green, how quickly can you finish the hole with and what equipment to use on the greens, because on the greens it's essentially frowned upon to use irons. लोग यूज़ कर रहे हैं, लोगों ने यूज़ करा है, वीडियोस भी बनाई है, बट इट्स essentially it's not required. सबसे जो बेसिक है, जो आई थिंक जो सबसे पुराना जो होगा सेटअप, वो आई थिंक ये वाला है. इफ यू कैन सी इट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पटर व्हिच इज कॉल्ड अ ब्लेड पटर. राइट, बिल्कुल एक फ्लैट लाइन टाइप का होता है. बेसिकली यू जस्ट काइंड ऑफ जस्ट कीप योर स्ट्रोक फ्लैट एंड इट बेसिकली गिव्स यू दैट आइडिया की, बिकॉज it's just kind of a line putter or a blade putter, it gives you an idea कि आप सही पैरेलल आपका स्ट्रोक जा रहा है नहीं जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा. gives you that kind of a feel. बट इसका कुछ लिमिटेशन होता है, जैसे अगर आप थोड़ा सा लंबे पट मार रहे हो या जहाँ पे थोड़ा सा रफ है या बाहर से मार रहे हो थोड़ा सा ग्रीन से, तो पकड़ता है. मतलब अगर आपका ग्रास जो है अगर इसको होल्ड करेगा तो आपका स्ट्रोक जो है वो रुक जाएगा बीच में. दैट्स वन डिसएडवांटेज एंड दैट्स व्हाई द अदर सेट ऑफ पटर्स came into the picture, जहाँ पे लॉन्ग पट्स जो हैं those are easier to make because उनके पीछे एक प्रॉपर वो CG स्ट्रक्चर होता है. एक बार दिखाएं दूसरा. So I'll show you which is called a mallet putter. Yeah, ये mallet putter. Yeah, and ये लोगों ने इसको Texas wedge बोलना शुरू कर दिया है. So you can see यहाँ पे like you have a full kind of a setup or a structure that is like it's an extended version of that blade putter, जहाँ पे आपको पीछे से एक काइंड ऑफ अ वेट मिल रहा है. तो अगर आप उसको ग्लाइड करोगे, नॉर्मली आपका स्ट्रोक लोगे, तो वो पीछे से जो वेट है वो ज़्यादा ईजिली आपकी बॉल को ट्रैवल कराएगा. सो अगर आपको लॉन्ग पट मारना है तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पीछे लेके मारना पड़ेगा जैसा दूसरे पटर में मारना पड़ेगा. इसमें रिलेटिवली आपको स्मॉलर स्ट्रोक होगा, आराम से कैरी होगा. सो कुछ लोग इस पर कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग डिपेंडिंग अपॉन कंफर्ट फैक्टर होता है. कंफर्ट है प्लस अपनी टेक्निक है और अपनी टेक्निक होती है, अपना खेलने का तरीका है. हाँ, सो आजकल बहुत ज़्यादा ये चलने लग गया है. ये जो इट्स नॉट लाइक अ फुल मैले, सेमी वेट है स्टार्टिंग में, बट एनफ वेट फॉर यू टू काइंड ऑफ गेट अ फील ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, जहाँ पे ब्लेड भी है और मैले वाला जो सीन भी है. तो कुछ लोग ये वाला भी यूज़ करते हैं जो सेमी
स्ट्रक्चर होगा, आपको दिखेगा कि उतना डीप स्ट्रक्चर नहीं है पीछे जितना उसमें मैले बटर में यूज़ होता है। डिफरेंट शाफ्ट लेंथ ग्रिप्स के बारे में भाई साहब एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं। मैंने ग्रिप से करा है बट शाफ्ट लेंथ और उनसे नहीं करें। बट या मे बी यू कैन एक्सप्लेन द why the grips and shaft length is important. So in putting, basically you need to have as stiff of your body structure and hands as possible to make the ball roll in a certain direction. अगर आपने एक लाइन एग्जांपल के लिए ग्रीन पे लाइन डिसाइड करी है कि मेरे को इधर मारना है, बट आप उधर मारने के लिए वो इनकन्सिस्टेंसी 1 इंच can decide either you birdie, par or bogey. So a lot of people, what they started doing was there was a controversy with PGA जहाँ पर लोगों ने मना कर दिया था कि वो ये आर्म लॉक पटर्स अलाउड नहीं है वो। सो कुछ लोगों ने स्वीपर यूज़ करना शुरू किया था। एंड what this does is basically you keep your left hand stiff and you putt with your right hand, not having to grip with both your hands tightly. So what it did was it kept this hand stable, and with this hand all you had to do was sweep the ball. So it's called a sweeper essentially. And ये मैंने बनवाया था and I have not used it yet. I'm yet to use it. I'll use it in one of the videos. Then secondly, this is probably my favorite putter up till now which has been used. ये is a mallet putter as he told you, but I got the grip change which gave me so much stability because I essentially have very big hands, and for me this stability that I get with this putter is very very comfortable, I would say. होता क्या है कि अगर आप पट करते हो, अगर आप पे ये हाथ अंदर गया तो कैन यू सी दिस फेस, राइट? इट इज क्लोजिंग. सो जिस लाइन पे आपने स्टार्ट किया इट विल नॉट गो ऑन दैट लाइन, राइट? दैट्स द एंटायर प्रॉब्लम. एंड मेजॉरिटी जो जनता होती है जो नया स्टार्ट कर रही है या बिल्कुल 2-3 साल 4 साल हुए, इवन 5 साल वाले भी मेरे को लगता है उनके साथ प्रॉब्लम यही होता है कि बार बार हाथ पुल हो रहा है या क्लब फेस खुल रहा है. तो जितना कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर और फ्लो होगा आपका उतना बेटर है. एंड दैट्स वाई अभी जैसे इसको इस ग्रिप पे ज़्यादा है तो आप देख सकते हो कितने मोटी ग्रिप है, बट इट वर्क्स फॉर हिम, इट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. और इसके लिए फेस कंट्रोल के लिए लोग और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं. कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे कंट्रोल करते हैं, क्लॉ ग्रिप बोलते हैं इसको. See, this was a video where we wanted to show you what our technical jargon for the game is, and apart from that we wanted to show you how irons are used, how putters are used, how drivers are used. बॉल्स के बारे में मैं बस इतना बोलूँगा कि 3-4 तरीके की बॉल्स होती हैं. एक 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर बॉल होती है. और जब आप खेलना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू अ पॉइंट वेयर यू विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद बॉल्स, हाउ मच स्पिन दे आर गिविंग, हाउ हैवी दे आर, हाउ विंडी कंडीशन में कौन सी बॉल चलती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. Figure that out on your own on the course, because that again is very personal. It is something which has वो आपकी technicality पे depend करता है, आप कितने technically sound हो. Again, it's very personal. People use it, people don't use it. I use it. One is a ball marker essentially. बहुत तरीके के आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, लोग अलग अलग यूज़ करते हैं. 3 line वाला, 2 line वाला, single line वाला. So I use like a single line and I carry set of 2 permanent markers, and I mark my balls. All my balls are marked, and उसमें basically एक center line, I make a center line, and that's all I do. I make like this one center line which helps me with my putting, and it is allowed. This is something that is allowed by everybody. So ऐसा कुछ नहीं है कि you're doing nothing illegal here. I tell this to everybody. There's a reason why this is a little worn out, that if you take care of the golf course takes care of you. And अगर ग्रीन पे आपकी बॉल आती है तो एक है ना छोटा सा गड्ढा बन जाता है अगर बहुत हाई गिरती है, तो उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको उसको रिपेयर करना सीखना है तो probably I'll show it to you in another video, but you have to, there's a certain way to repair your golf course. Either give this to your caddy, tell him to repair it, or you repair it yourself. So basically जब ग्रीन पे बॉल आपकी पड़ेगी, and because जैसे वो मेंटेन्ड है, हम लोग बोलते हैं कि सबसे फाइनेस्ट जो मेंटेन्ड है वो आपका ग्रीन होता है. आपका बॉल पड़ेगा तो वो बेसिकली वहाँ पे वो एक काइंड ऑफ डेंट सा पड़ता है ग्रीन पे, तो उसको फ्लैटन आउट करने के लिए दोबारा से टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल शेप. दिस इज a range finder, and it is used for 2 different things. One is hunting. People use this for hunting as well, and they use for golf. Yes. Really? Yeah. It will capture the distance between you and the pin where you want to hit, and this is essentially very important because जब आप कैडी के साथ खेल रहे हो तो कैडी एक एवरेज डिस्टेंस देता है. वो आपको
बोलेगा 148 है, 147 है, but once you start getting better at your golf, this is basically the best company in the ये world. थोड़ा हाँ It's a little expensive. This one is high end वाला but हाँ, but और भी बहुत सारे आते हैं, and आप Amazon पे जाओगे, there'll be like I don't know 50 odd range finders that you can get from different brands, but this from Bushnell is probably the best that I have used up till now. But slope adjustment is not allowed in tournaments. Regular rounds killer, regular rounds में use करो. Get to understanding how the rangefinder, what yardage it is giving you and why is it giving you that yardage. जब आप slow adjustment आप सीख लेते हो, उसके बाद इसको फीचर को ऑफ करो and play around because you'll just get better at it. That's about it. इसको अलाइनमेंट स्टिक बोलते हैं. मैं एक्चुअली जब से इसको यूज़ करना शुरू किया, मेरा राइट में सी खत्म हो गया. रेंज पे आकर सबसे पहले तो this is how you want to set up your alignment stick is basically you want to set it up at the target कि आपका ये सपोज आप इसके और इसके बीच में खड़े हो, तो अब ये यहाँ से वहाँ तक एक्सपैंड होता जाता है, बट आपका ये शॉर्ट एरिया है कि आपको इतने के अंदर ही रखना है. सो ये अलाइनमेंट स्टिक उसमें हेल्प करती है. प्लस आपकी कभी कभी आप जब कोर्सेज पे क्या होता है ना, आपका ये वाला पैर आगे है, ये वाला पैर पीछे है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो व्हाट दिस डज इज, जब आप रेंज पे आओ तो पुट योर फीट ऑन दिस एंड देन स्टार्ट हिटिंग योर बॉल्स, बिकॉज व्हाट दैट इसेंशियली डज इज कि आपका बेस स्टेबल रहेगा और दोनों फीट अलाइंड रहेंगे. तो फीट अलाइनमेंट के काम आता है. यू कैन यूज दिस फॉर सो मेनी थिंग्स. फील आ जाती है आपको उसकी, बेसिकली डेवलप द फील ऑफ staying square. Correct. I think I hope that आज हमने explain किया है, उससे आप लोग थोड़ा सा बेटर होगा. अभी भी कोई क्वेश्चन है या किसी और टाइप का? हाँ, क्वेश्चंस आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपके कोई क्वेश्चन है ना तो कमेंट्स में डाला करो, इंस्टेंट ऑफ रीचिंग अस टू अस ऑन इंस्टाग्राम और रीचिंग अस टू अस ऑन डीएम्स. मेरी तो वाइफ ही आजकल बात ही वैसे करती है कमेंट्स पे. हाँ एग्जैक्टली. मैंने क्वेश्चन कमेंट डाला तो जवाब नहीं आ रहा, क्वेश्चन डाला जवाब नहीं आ रहा. Yeah, and I think that's about it. We'll catch you in the next video. Yes, we'll do some range session. We'll try to do some range session before the sun sets. Yeah. But yeah, thank you for the response on the game video especially, and all the reels and shorts that we've been putting. Glad to see people are actually liking it. And then we'll keep bringing similar content. और जो ख्वाहिशें हैं वो let us know in the comment section. All right, we'll see you next time. Thank you so much. Peace. Bye. Oh, मैंने भी peace बोलना शुरू कर दिया. टीज भी दिखाई दे. तो सबसे बड़ी जो टीज थी equipment. If you are hitting on a par 4 with the driver, this is the one that we are talking about. Most of the times जो non golfers होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ड्राइवर का मतलब क्या है, right? So this is your अब मेरा चला thought. But anyways.